کہ رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا۔ کل پہلا روزہ ہوگا۔ چیئرمین مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی نے اعلان کر دیا۔ سٹی نیوز نیٹ ورک کی جانب سے اہلیان وطن کو رمضان مبارک۔ آپ کو بتا رہے ہیں رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا۔ چیئرمین مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی نے اعلان کر دیا رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا۔ کل پہلا روزہ ہوگا۔ چیئرمین مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی نے اعلان کر دیا۔ سٹی نیوز نیٹ ورک کی جانب سے مبارک۔ ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آنے کی شہادتیں موصول ہوئیں، جن میں پشاور، لاہور، سوات، سرگودا، دیر و دیگر مقامات شامل ہیں جہاں پر چاند نظر آ گیا ہے۔ لہذا اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ انشاءاللہ یکم رمضان المبارک 1445 ہجری 12 مارچ 2024 بروز منگل کو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی پوری عالم اسلام اور پاکستان اور تمام مسلمانوں کو رمضان کی آمد سب کو مبارک ہو۔ الیکشن کمیشن نے جڑوالا کے حلقہ پی پی 100 کی دوبارہ گنتی کے احکامات جاری کر دیے۔ پی پی 100 سے عمیر وسیع چودھری آزاد حیثیت سے 48,298 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے تھے۔ مسلم لیگ نون کے امیدوار 44,433 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر آئے تھے۔ حلقہ پی پی 100 کی دوبارہ گنتی صبح 8 بجے گورنمنٹ ٹیکنیکل ہائی اسکول نمبر 1 پیپلز کالونی فیصل آباد میں ہوگی۔ آپ کو بتا رہے ہیں جڑوالا کے حلقہ پی پی 100 کی دوبارہ گنتی کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے دوبارہ گنتی کے احکامات جاری کیے گئے۔ آزاد امیدوار عمیر وسیع چودھری 48,298 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے، جبکہ نون لیگ کے امیدوار 44,433 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ مسلم لیگ نون کے امیدوار خان بہادر جوگر نے دوبارہ گنتی کی اپیل کی تھی۔ دوبارہ گنتی صبح 8 بجے گورنمنٹ ٹیکنیکل ہائی اسکول نمبر 1 پیپلز کالونی فیصل آباد پر ہوگی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے جڑوالا کے حلقہ پی پی 100 کی دوبارہ گنتی کے احکامات جاری کر دیے۔ پی پی 100 سے عمیر وسیع چودھری آزاد حیثیت سے 48,298 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے تھے، جبکہ مسلم لیگ نون کے امیدوار 44,433 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر آئے تھے۔ شہریوں کے لیے اچھی خبر۔ فیصل آباد میں سحری و افطاری کے اوقات میں بلا تعطل گیس فراہمی کا فیصلہ۔ فیسکو کا ماہ سیام میں بجلی لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کا اعلان۔ ریجن بھر کے فیڈرز پر مرمتی کام پر بھی پابندی لگا دی۔ سحر و افطار میں بلا تعطل گیس ملے گی۔ فیصل آباد ڈویژن کے لیے سحر و افطار میں گیس فراہمی کا شیڈول مرتب۔ محکمہ سوئی گیس کے مطابق سحری رات میں 2:30 سے صبح 8 بجے، جبکہ افطار میں سپہر 3 سے رات 10 بجے تک گیس ملے گی۔ رمضان المبارک میں بجلی کی بلا تعطل کی فراہمی کے لیے فیسکو کا اہم فیصلہ۔ فیسکو کا ماہ سیام میں لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کا اعلان۔ ریجن بھر کے فیڈرز پر مرمتی کام پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ تکنیکی مسائل اور دیگر خرابی کی صورت میں ایمرجنسی شٹ ڈاؤن لیا جا سکے گا۔ فیسکو چیف نے تمام سرکلز کو حکم نامہ جاری کر دیا۔ چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز فیسکو ملک تحسین ایوان کہتے ہیں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کرنے پر متعلقہ عملہ معطل ہوگا، سحر و افطار کے اوقات میں متحرک رہے گا۔ سی ای او فیسکو آپریشن سٹاف کی رہنمائی کرے گا۔ واسا فیصل آباد میں بھی رمضان المبارک میں پانی کی فراہمی کا ٹائم تبدیل کر دیا۔ مینیجنگ ڈائریکٹر واسا عامر عزیز کے مطابق یکم رمضان المبارک سے صارفین کو پینے کا پانی سحری کے اوقات میں 3 سے 6 بجے، افطاری کے وقت 4:30 بجے سے 7:30 بجے تک فراہم کیا جائے گا۔ رمضان المبارک کے دوران سرکاری دفاتر کے اوقات کار کا نیا شیڈول جاری کر دیا گیا۔ اسکول، بینک اور دیگر اداروں کے اوقات کار تبدیل کر دیے گئے۔ فیلڈ سٹاف کی ڈیوٹی 8 سے 3 بجے تک ہوگی۔ ڈپٹی کمشنر دفتر میں افسران 9 سے 4 بجے تک ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ رمضان المبارک کے لیے اسکولوں کے اوقات کار تبدیل۔ صبح 7:30 بجے سے 12:30 تک ہوں گے۔ جمعے کے روز اسکولوں کی ٹائمنگ 7:30 سے 11:30 تک ہوگی۔ ڈبل شفٹ اسکولوں کی مارننگ شفٹ 7:30 سے 11:15 تک ہوگی۔ ایوننگ شفٹ 11:30 سے 3:30 بجے تک ہوگی۔ جمعے کے روز ایوننگ شفٹ 2 بجے سے 5 بجے تک ہوگی۔ اسٹیٹ بینک کے اعلامیے کے مطابق یکم رمضان کو تمام بینک زکوٰۃ کٹوتی کے لیے بند رہیں گے۔ رمضان المبارک میں بینک پیر سے جمعرات تک صبح 9 بجے سے سپہر 2 بجے تک، جبکہ جمعے کے روز صبح 8:30 سے دوپہر 1 بجے کھلے رہیں گے۔ ریجن بھر کی 1422 مساجد میں تراویح کا اہتمام۔ سحر و افطار اور تراویح کے اوقات میں 5,980 سیکیورٹی اہلکار تعینات۔ فیصل آباد ضلع میں 5,077، جانگ میں 534 اہلکاروں نے سیکیورٹی فرائض سر انجام دیے۔ ٹوبہ میں 179 اور چنیوڑ میں 134 اہلکار تعینات کیے گئے۔
रमजान की आमद पर महंगाई का पारा हाई हो गया। सेब, केला, अंगूर, तरबूज और दीगर फलों की कीमतों में इजाफा। दुकानदारों की खुद साख्ता महंगाई से शहरी शदीद परेशान। कहा, गरीब आदमी क्या खाए, सब कुछ तो पहुंच से दूर। फैसलाबाद में रमजानुल मुबारक की आमद पर महंगाई सर चढ़कर बोलने लगी। सेब, केला, अंगूर, तरबूज, माल्टा, खरबूजे और दीगर फलों की कीमतों में इजाफा हो गया। दुकानदार ने भी खुद साख्ता अशिया के रेट्स बढ़ा दिए। शहरी कहते हैं, गरीब आदमी क्या खाए, सब कुछ तो पहुंच से दूर है। कर ही नहीं सकते हैं कोई भी चीज़ है। अब वो इफ्तारी के टाइम समोसे होते हैं या पकौड़े होते हैं, उसमें आलू ले लें या प्याज ले लें, वो आसमान पर पहुंच गया। प्याज तो पहले भी 200 रुपये था और अब 200 से ऊपर चला गया। 250-300 रुपये किलो प्याज। क्या करेगा वो गरीब आदमी? एक वो घर में वो तैयार चीज कर ही नहीं सकता, आलू प्याज भी नहीं तैयार कर सकता, वो कैसे करेगा? रमजानुल मुबारक की आमद के साथ ही फलों की रेहड़ियों पर शहरियों का रश लग गया। शहरियों का कहना है कि कल पहला रोजा है, अफ्तार की तैयारी आज ही कर ली है। अफ्तार दस्तरखान फलों के बगैर नामुकम्मल सा होता है। पसंदीदा फल खरीद लिए हैं। गवर्नमेंट भी जो आगे रेहड़ी छापड़ी वालों को या छोटे दुकानदारों को पकड़ते हैं। मंडी में जो कोई भी नहीं जाता, जिधर से हर चीज महंगी मिलती है। असल वजह मंडी है। जैसे अगर चीनी 80 रुपए किलो इधर, ऐसे ही मंडी में भी एक चीज का रेट होना चाहिए कि ये आपने ये चीज इतने की बेचनी है, इससे महंगी नहीं बेचनी। फलों की कीमतें: केला 150 से 250, सेब 250 से 400 रुपए, खरबूजा 100 रुपए से 150 रुपए किलो, किन्नू 250 रुपए से 400 रुपए किलो, अंगूर 600 रुपए, अनार 300 से 400 रुपए फरोख्त हो रहे हैं। कैमरामैन टीम के हमरा मरीम रजा, सिटी 41, फैसलाबाद। माह रमजान का आगाज। जंग में शहरियों को रिलीफ देने के लिए मॉडल बाजार सज गए। दाल, सब्जी, फल, गोश्त और दीगर अशिया सस्ते दामों दस्तयाब। रमजानुल मुबारक की आमद के साथ ही मॉडल बाजार भी सज गए। दाल, सब्जी, फल, गोश्त और दीगर अशिया मॉडल बाजार जंग रोड में दस्तयाब हैं। सस्ते दामों अशिया खुर्दनोश खरीदने के लिए लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता है। शहरियों का कहना था कि बाहर मार्केट की निस्बत मॉडल बाजार में अशिया सस्ती हैं। तकरीबन सारी चीज़ों में फ़र्क है। प्याज में और दालों में, खजूरों में भी तकरीबन आधा तकरीबन फ़र्क है। मसला काफ़ी बेहतर है, कीमत में फ़र्क है, लेकिन बस यही परेशानी है कि आसानी से ज़रा मिल जाए। शहरियों का इंतजामी अमूर के हवाले से कहना था कि काउंटर ज़्यादा होने चाहिए। घंटों लाइन में खड़े होने के बावजूद नंबर नहीं आता। ऐसे तो हमारा दिन सामान खरीदने में गुजर जाएगा। शहरियों ने मॉडल रमजान बाजार में सस्ती अशिया की फरहमी पर इत्मीनान का इजहार किया। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ फसी नकवी, सिटी 41, फैसलाबाद। टोबा इंतजामिया का अहसन इकदाम। रमजान में अवाम को रिलीफ देने के लिए फेयर प्राइस शॉप कायम कर दी। शहरियों को अशाए खुरनोश 25% रियायत पर दस्तयाब होंगी। का बड़ा इकदाम। रमजान में शहरियों को रिलीफ देने के लिए फेयर प्राइस शॉप कायम कर दी गई। शहरियों को अशिया खुर्दनोश 25% रियायती कीमत पर दस्तयाब होंगी। फेयर प्राइस शॉप पर खजूर, बेसन, प्याज, टमाटर, आलू, केला, दालें, सब्जियां मौजूद होंगी। शहरियों का कहना था कि महंगाई के तूफान में फेयर प्राइस शॉप किसी नेमत से कम नहीं। सस्ती अशिया की बदौलत गरीब भी रमजानुल मुबारक में दस्तरखान सजा सकेगा। ठीक ठाक हमारे हो रहा है, चीज सुथरी है, साफ सुथरा माहौल है। बाकी ये है भी रमजान च गरीब आदमी भी लैके खा सकता है, अद्धी कीमत दे सकते हैं। हुण तां सब कुछ बाकी तो अल्लाह दा शुक्र है। सेक्रेटरी मार्केट कमेटी मोहम्मद साजिद का कहना था कि फेयर प्राइस शॉप सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। शहरियों की सहूलत के लिए मर्द, खवातीन और बुजुर्ग अफराद के लिए अलग अलग काउंटर नस्ब किए गए हैं। ये फेयर प्राइस शॉप है, गवर्नमेंट की वज़ीर आला पंजाब की तरफ से लगाई गई है। टोबा टेक्सिंग ने हमने कल से इस्टेब्लिश की हुई है, कल से चल रही है और इसमें ए ग्रेड क्वालिटी का सामान है। सब पर ही 25% डिस्काउंट है थोक रेट पर। शहरियों ने फेयर प्राइस शॉप कायम करने पर इंतजामिया का शुक्र अदा किया। कहा, फेयर प्राइस शॉप के बायस घरों के चूल्हे भी रमजान में जल सकेंगे। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ अहमद नदीम, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। चिन्योट के रमजान बाजार में एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप फाल। सार्फिन को अशराए ज़रूरिया आम मार्केट से 25% रियायती निर्खों पर मिलेंगी। सेक्रेटरी मार्केट कमेटी सुबह खान का दौरा, अशराए खुरनोश की दस्तयाबी और मेयार का जायजा लिया। अजहर अब्बास भी उनके हमरा थे। इंस्पेक्टर मार्केट कमेटी मोहम्मद सईद शाकर ने ब्रीफिंग दी। सेक्रेटरी मार्केट कमेटी सुबह खान ने बताया कि सार्फिन को शय ज़रूरिया मार्केट से 25% रियायती नरखों पर मिलेंगी। आलू मार्केट में 55 रुपए और रमजान बाजार से 38 रुपए फी किलो मिलेगा। प्याज 157 रुपए फी किलो मिलेगा। टमाटर मार्केट में 160 जबकि रमजान बाजार से 109 रुपए फी किलो। इसी तरह लहसुन मार्केट से 600 और रमजान बाजार से 409 रुपए फी किलो मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक मार्केट कमेटी ने एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप का आगाज कर दिया है।
इस पर 13 आइटम्स जो हैं सब्ज़ी, फ्रूट और खुश्क आइटम, दाल, चना, बेसन, खजूर वगैरह, हर आइटम पर 25% जो है वो सब्सिडी दी गई है। और इसके लिए हुकूमत पंजाब, वज़ीर आला पंजाब ने हमें 12 मिलियन रकम मुख्तस की है सब्सिडी की मद में। नींबू 130 की बजाय 99 रुपए फी किलो, सेब 320 की बजाय 218 रुपए फी किलो दस्तयाब होगा। केला 175 की बजाय 119, खजूर 500 की बजाय 368 रुपए फी किलो मिलेगी। अमरूद 102, खरबूजा 137 रुपए, दाल चना 165 रुपए फी किलो, जबकि बेसन मार्केट में 230 और रमजान बाजार से 170 रुपए फी किलो में मिलेगा। आला से आला चीज़ें हर आदमी को बिला तअत्तल उसको दी जाएंगी। और इसमें हमारे कुछ ऐसे आइटम्स हैं जिनमें पर केजी पे तकरीबन 200 रुपए का भी मार्जिन है, इसलिए ये हर आदमी को ये रिलीफ मिल रहा है और वो इसको वसूल करने के लिए तशरीफ ले। सेक्रेटरी मार्केट कमेटी सुबह खान का कहना था कि माह सियाम में सार्फिन को मियारी अशिया ज़रूरिया की कम कीमतों पर फराहमी तरजीह है। कैमरामैन अलीज़ेब चौहान के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। यहाँ आपको बताएं, रमजान की आमद पर भी महंगाई के वार न थम सके। एलपीजी की कीमतों में बड़ा इजाफा, सरकारी रेट 257 रुपए जबकि मार्केट में 320 रुपए पर पहुंच गए। महंगाई के तूफान ने गरीब सार्फिन की कमर तोड़ दी। माह रमजान के दौरान एलपीजी का इस्तेमाल भी गरीब की पहुंच से दूर हो गया। एलपीजी का सरकारी रेट फी किलो कीमत 257 रुपए है जबकि मार्केट की कीमत 320 रुपए फी किलो है। सार्फिन कहते हैं कि सैर अफ्तार में गरीब और मुतवस्सित तबके के चूल्हे कैसे चलेंगे। आपने सिलेंडर पकड़ा हुआ, आप गैस लेने आए? जी सर, हम कितनी गैस चाहिए आपको? मुझे 4 किलो गैस है। इससे पहले आपने कितने रुपए की डलवाई थी? 270 रुपए ले लीजिए। अब कितना रेट बता रहे हैं आपको? अब 310 रुपए बता रहे हैं। 310 रुपए हो गए 2 से 3 दिन के अंदर। 40 रमजान से आने से पहले ही जो है वो आवाम के ऊपर ये महंगाई का बोझ गिराया गया। क्या ये उन्होंने तो अपने अपने रेट लगाए हुए हैं। हर जगह पे रमजान में सस्ती चीज मिलती है, लेकिन उन्होंने अपनी मनमानियां शुरू कर दी हैं। सार्फिन आए रोज खुद साख्ता कीमतों से भी परेशान। बोले एक रोज पहले कीमत कुछ और थी और आज रेट कुछ और है। ये उन्होंने तो अपने रेट लगाए हुए हैं। हर जगह पे रमजान में सस्ती चीज मिलती है, लेकिन उन्होंने अपनी मनमानियां शुरू कर दी हैं। अब गरीब आदमी क्या करे, रोटी कहाँ से कमाए, कहाँ पे बच्चों को खिलाए, क्या करें, बहुत हमारे लिए तो मुश्किल हो गया। सार्फिन कहते हैं दुनिया में मजहबी त्योहारों पर खसूसी राहत दी जाती है जबकि हमारे यहाँ लूटमार बढ़ जाती है। कैमरा टीम के साथ शराज भट्ट, सिटी 41 फैसलाबाद।